Good morning, children. This is the last chapter of MCB Unit 15 and Adventurous Journey Across the Savannah. Today I will explain this chapter through my video channel, YouTube channel. Okay, this is the introduction of that dense forest which located in Africa. Adventurous journey across Savannah. Savannah में animals का journey के बारे में ये स्टोरी है. And this is the इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट सेवेना अफ्रीका में है उसका ये इंट्रोडक्शन है, वो फॉरेस्ट कैसा है. द अफ्रीकन सेवेना इज कवर्ड विथ टॉल वेविंग ग्रास. एज फॉरेस्ट वी नो चिल्ड्रेन, बहुत ही ग्रास होते हैं उसमें, बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे स्कैटर श्रब्स होते हैं. एंड डॉटेड विथ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज भी रहते हैं. न्यूमरस स्पेसीज, बहुत विभिन्न टाइप के वहाँ पर बर्ड्स रहते हैं. एनिमल्स, रोडेंट्स चिल्ड्रेन, दोज एनिमल्स हु कैन expert in cutting. Insects live in savanna. Some are tiny like mole rat that feed on large tubers. Tubers children root. Okay, जो root रहते हैं ट्री के नीचे उस पर डिपेंड रहते हैं कुछ tiny animals. Growing under the ground, meat cats eat insects and lizards, spider and scorpio and also plants. The long-legged secretary birds eat snakes. ये सभी एनिमल्स और उसके स्पेशलिटी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कौन क्या खाता है, कैसे रहता है. देन एबल टू रन ऑफ इनटू द टॉल ग्रास. वो सभी फिर से छुप जाते हैं टॉल ग्रास के पीछे. द ऑस्ट्रिच एज वी ऑल नो हैज़ ऑल्सो गॉट लॉन्ग लेग्स एंड कैन रन एट अबाउट 31 miles per hour. दिस इज द स्पीड ऑफ ऑस्ट्रिच वी कैन सी. नेक्स्ट कम hunter. The lions, leopard and jackal. These animals are called hunter because they hunt the animals then eat. The lion is often called the king of jungle. Lion को जंगल का किंग कहा जाता है, जबकि but it is the leopard that though smaller is much smarter. leopard उससे छोटा है but वो ज़्यादा स्मार्ट होता है. To follow are the hoofed animal of the savanna and lives wild beast or gnus. This is the pronunciation of children. This G will be silent and US gnus. Buffalo, zebras and rhinoceros that graze on grass. जो एनिमल हार्बीवोरस होते हैं that is called wild beast. Gnus. They do not fight over any kind of grass. They are very much friendly children. वो कभी फाइट नहीं करते हैं. Want to eat as each one gauges the grass that is at a different height. सब डिफरेंट हाइट के एनिमल्स है, इसलिए डिफरेंट हाइट के ग्रेज करते हैं ग्रास, इसलिए वो लोग कभी भी फाइट नहीं होता है उनमें. फाइनली वी हैव द टॉल एनिमल, द जिराफ एंड द एलिफेंट. जिराफ आर ब्राउजर दैट ईट द लीव्स एंड बुशेस एंड ट्रीज. द जिराफ टेक्स अ ब्रांच इन इट्स माउथ एंड टीयर्स ऑफ द लीव्स. जिराफ जो है सबसे पहले ईटिंग करता है, स्टार्ट करता है, वो ऊपर का बुशेस और ट्रीज का, वो टॉल, उसका नेक टॉल है, वो हाइट पर है, इसलिए हाइट पर जितने भी ग्रास रहते हैं, ट्रीज रहते हैं, वो सारे वो खा लेता है. एलिफेंट हैव अ स्पेशल जॉब. एलिफेंट के पास स्पेशल जॉब है दैट इट श्रब्स एंड ट्रीज एंड हेल्प टू क्लियर स्पेस. वो स्पेस को क्लियर करता है, वो नीचे से उखाड़ के ही खा लेता है, इसलिए न्यू ग्रासेस को ग्रो करने का स्पेस मिलता है. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. आवर स्टोरी टेक प्लेस इन अफ्रीकन सेवेना on a hot and steamy day in May. This is the summer season children, and this story is take place in that jungle and the called African savanna. Very dense jungle it was there, and the month is going on May. It means very much summer, hot day. It was hot day. Dark clouds could be seen gathering in the sky, and scent of moist dust filled in the air. Okay, as we know, in the May and June we okay children, in the May month we can see sometimes there were very much clouds gathering in the sky. So on those days the animals when saw the dark clouds could be seen gathering in the sky and scent of moist dust. Okay, in the rainy season we can smell some scent of moist dust, so also and animals also
can smell the moist of dust filled in the air. It was the scent of rain. Gabra, okay, this is the name of giraffe. Gabra can see. गबरा ने भी फील किया कि वहाँ पर बहुत ही डार्क क्लाउड है और मॉइस्ट का सेंट आ रहा है. सो ही ऑलरेडी न्यू दैट इट इज़ अ सेंट ऑफ रेन. ही वेलकम द थॉट ऑफ रेन. उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि अब बारिश होगी, क्योंकि बहुत ही समर हॉट डे था और उन्हें परेशानी हो रही थी. द समर हैड बिन हॉट एंड ड्राई. गबरा स्क्रैच्ड हिज हेड. वो अपने सर को स्क्रैच करने लगा, खुजलाने लगा. एंड पुल्ड अ लीफी ब्रांच. ही च्यूड द लीव्स एंड ग्लैंस्ड अप एट द नाउ स्टॉर्मी स्काई. वो अपने सर को खुजाते हुए लीफी जो ट्री था उसने मुंह में लीव्स डाल दिया और ऊपर सर करके देखा स्टॉर्मी स्काई को. हेलो Gabra, are you enjoying those acacia leaves you are chewing? Said Dinha, the crane. This is the name of crane, children. Dinha, उसने क्या कहा गबरा को कि तुम enjoy कर रहे हो acacia leaves को. Acacia leaves here is children given the meaning tropical shrubs, जो कि बहुत ही हाइट में माउंटेन्स पर आते हैं. That is called acacia leaves. वो ट्रॉपिकल रहते हैं, बहुत ही हाइट में मिलते हैं. I see you have been scratching your back against the termites mounds. उसने क्या कहा दिन्हा ने उसे कि तुमने जब स्क्रैच किया तो तुम्हारे बैक से ये टर्माइट्स जो पेड़ पर रहते हैं, टर्माइट्स दीमक, उसे तुमने डिस्टर्ब किया. जम्बो दिन्हा. I love this acacia leaves, said Gabra, and you have been eating the termites I disturbed. मुझे यह बहुत पसंद है और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया टर्माइट्स माउंट खाने के लिए. We always help each other. उसने कहा कि हम लोग हमेशा एक दूसरे से हेल्प करते हैं. मैंने मतलब कि टर्माइट्स को डिस्टर्ब किया तो तुम उसे खा लोगी. सडनली अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड रंबल ऑफ थंडर ब्रोक द काम ऑफ द सवाना. तभी क्या हुआ चल रहा है, वहाँ पर लाइटनिंग होने लगा, बिजली चमकने लगा और बादल भी गरजने लगे, जो कि जंगल की शांति को भंग कर रहे थे. गबरा रेज्ड हिज लॉन्ग नेक एंड लुक्ड एट द रैपिडली डार्कनिंग स्काई. वो अपने सर को उठाकर आकाश को देखने लगा. ही फेल्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन हिज हेड. तभी बारिश भी होने लगी, उसके सर पर कुछ ड्रॉप्स आया. वी बेटर टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज, लुक एट द अंट्स. उसने कहा कि हम लोग को भी अच्छा रहेगा कि हम लोग कोई शेल्टर ले लेंगे. अंट्स को देखो. दे आर कैरिंग देयर फूड इन टू रूट्स ऑफ दिस ट्री. वो अपने फूड को कैरी करके जा रहे हैं रूट में. इट इज़ गोइंग टू रेन हैवली. बहुत ही जोरों की बारिश होने वाली है. जून में हम लोग देखते हैं ना चिल्ड्रन, कभी कभी बहुत ज़ोरों की बारिश होती है. यस गबरा, सेड दिन्हा सैडली एग्जामिन हर विंग्स. वो अपने विंग्स को देखती है, पंखों को देखती है. लुक एट माई फेदर, दे लुक ग्रे एंड डस्टी नाउ. बहुत ही डस्टी और ग्रे लग रहे हैं, बहुत ही गंदे हो गए हैं. द रेन विल मेक देम लुक शाइनी अगेन, सेड गबरा. वी ऑल नीड द रेन. आवर वाटरिंग होल्स आर गेटिंग ड्राई. उसने कहा मुझे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बारिश की अभी, क्योंकि हमारे होल्स भी हैं बहुत ही सूख गए हैं. द लास्ट टाइम आई वेंट देयर द लायंस एंड वाइल्ड डॉग्स एंड इवन द बबून्स वेयर फाइटिंग टू ड्रिंक फ्रॉम द स्मॉल पुडल्स ऑफ वाटर. उसने क्या कहा चल रहा है कि मैं देख रहा था डॉग्स को और बबून को दोनों फाइट कर रहे थे स्मॉल पुडल से पानी पीने के लिए. आई टुक ऑफ इन हरी, अदरवाइज मैं वहाँ से जल्दी से भाग गया. अदरवाइज सून दे वुड हैव स्टार्टेड फाइटिंग ओवर मी. जल्द ही वो लोग मेरे लिए लड़ने लगते. वी कांट ट्रस्ट देम. उस पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते. हरी आई डोंट लाइक दैट थंडर एंड लाइटनिंग, सेड दिन्हा एज शी फ्लू टू अकासिका ट्रीज. वो बोली जल्दी चलो, मुझे लाइटनिंग और थंडर बिल्कुल पसंद नहीं है. अकासिया ट्रीज पर वो जाके बैठ गए. वी कैन सी यस सी सेट ऑन द अकासिया ट्रीज. गबरा फॉलोड हर एज फास्ट एज हिज लॉन्ग लेग्स कुड कैरी हिम. वो भी बहुत ही फास्ट दौड़ने लगा जितना उसका लेग उसको बर्दाश्त करता. बिहाइंड देम, उसके पीछे. और हॉप्ड रैन, ठीक है, दौड़ता हुआ या फिर हॉप्ड करता हुआ. और स्लिदर्ड और सिक्योरिड स्कोर्स और टाइनी क्रिएचर्स. जितना भी टाइनी क्रिएचर्स था वो भी दौड़ते भागते या फिर डेंगते उसके पीछे पीछे आने लगा.
lizard and snakes, frog and insects, meerkats and mole rats, all with the same aim in mind। और सभी उसके पीछे सारे एनिमल्स आने लगे यही माइंड में एम लेकर कि हम लोग को शेल्टर लेना है। शेल्टर फ्रॉम द शीट ऑफ रेन्स दैट वेयर नाउ कमिंग डाउन हैवली। अब रेन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने लगा। फिलिंग द बुरोज एंड होल्स, वह सभी बुरोज को होल्स को भरने लगा। फ्लशिंग देम आउट ऑफ देयर होम्स, बाहर सभी के घर से बाहर मीन्स बिल से बाहर सभी निकलने लगे। द मड ग्रेजुअली टर्न इनटू नॉसी स्लशी मेस, मड जो था वो चेंज होने लगा, उसका ब्राउनिश अब रेड में बदल गया। सभी मड वहाँ लगी उसके लुक, मड का लुक चेंज हो गया। द हैवी डार्क क्लाउड्स वेयर पियर्स्ड विथ फॉग्ड स्पाइक्स, वहाँ हैवी क्लाउड्स तो था ऊपर से नीचे आने लगा, सभी दे कैन सी फॉग्ड स्पाइक्स, बहुत ही लाइटनिंग नीचे की ओर स्पाइक्स की तरफ दिखने लगा। एंड क्लैप्स ऑफ थंडर मेड द एनिमल्स स्टेयर अप एट द स्काई इन फियर, और सभी एनिमल्स वहाँ पर खड़े हो गए। स्टेयर में चिल्ड्रन लुकिंग, और सभी स्काई की तरफ डर के मारे देखने लगे। द अकासियास वेयर सून फुल ऑफ मैनर ऑफ कलरफुल पैरट्स, तुरंत ही अकासिया ट्री पर बहुत तरह के पैरट्स आ गए। दैट स्क्वेल्ड नोजली, और बहुत ही सभी चहचहाने लगे। Several other birds sat there looking quite sorry for themselves, rubbing their beaks against their wet and bedraggled feathers, सभी अपने beaks को रब करने लगे, अपने feather को untidy feather को साफ करने लगे। Especially noisy were two monkeys that chattered constantly in spite of rain and the थंडर, इतना रेन और थंडर भी हो रहा था तो भी वो लोग कॉन्स्टेंटली बातचीत चैटर कर रहे थे, मीन्स टॉक कर रहे थे। जम्बो फ्रेंड्स सेड वन ऑफ देम, सब तभी उस दोनों मंकीज में एक फ्रेंड बोला, आई एम मैमो एंड दिस इज माई ब्रदर मिल्स, वी लव स्विंगिंग ऑन दिस वाइन्स, हमें इस वाइन्स पर स्विंग करना झूलना बहुत पसंद है। बट डोंट लाइक दिस रेन एंड थंडर, लेकिन इस रेन थंडर में नहीं। इफ़ द रेन doesn't stop, the whole of Savannah will soon be flooded। उसने क्या कहा कि यदि बारिश बंद नहीं हुई तुरंत ही यहाँ पर फ्लड आ जाएगा। फ्लडेड, what are you talking about? said गबरा as astonished look in his eye, बहुत ही सरप्राइजिंगली वह बोला, फ्लड, क्या तुम बात कर रहे हो? My brother and I am almost drowned, said Mills, swinging on the vines and almost hitting गबरा's head। वो क्या बोला मिल्स कि हम लोग, मैं और मेरा भाई लगभग डूब जाएंगे। स्विंगिंग ऑन वाइन्स एंड ऑलमोस्ट, और उसके बाद वो स्विंग करने लगा वाइन्स पर, वहीं पर लता जो वाइन्स था बेल पर वो स्विंग करने लगा और ऑलमोस्ट उसने गबरा के हेड को हिट कर दिया था। केयरफुल सेड गबरा, गबरा ने कहा केयरफुल, ध्यान से रहो। टेल मी अबाउट दिस फ्लड, मुझे फ्लड के बारे में बताओ। व्हेन आई सॉ द रिवर बेड इट वॉज ऑलमोस्ट ड्राई, जब भी मैं रिवर को देखता हूँ ये तो पूरा सूखा रहता है। It is a roaring flood of water now, flowing as swiftly as a hot waterfall। उसने क्या कहा, यह रोरिंग है फ्लड का जो कि अभी हो रहा है, मतलब अभी फ्लड तो अभी शुरू नहीं हुआ, मतलब रोड कर रहा है, आने वाला है। फ्लोइंग एज स्विफ्टली, मतलब बहुत ही तेज़ी से, स्विफ्टली मीन्स तेज़ी से वाटरफॉल आएगा। मेनी एनिमल्स हैव बीन स्विफ्ट अवे, बहुत ही एनिमल्स स्विफ्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। 1 minute it was dry and at the next moment it appeared like a flash of lightning। अभी ड्राई है लेकिन उसके बाद सीधे फ्लैश लाइटनिंग आएगा। लुक एवरीथिंग along with it, उसके साथ ही चैटर, उसके साथ ही आएगा। चैटर मेमो एक्साइटेडली, बहुत ही मतलब वो बोलता रह गया एक्साइटमेंट के साथ। जंपिंग फ्रॉम ऑफ द वाइन इट वॉज स्विंगिंग ऑन द ब्रांच ऑन विच दिन्ना वॉज सिटिंग ऑलमोस्ट नॉकिंग हर ओवर, और वो वहीं पर स्विंग कर रहा था जहाँ पर दिन्ना बैठी थी, ऑलमोस्ट उसको भी उसने नॉक कर दिया था। इट्स गेटिंग वेरी क्राउडेड ओवर हियर, मटर्ड दिन्ना, दिन्ना ने कहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। सभी मेनी टाइप्स ऑफ पैरट्स आर देयर ना, सो शी सेड दैट वेरी मच क्राउडेड, और वो परेशान हो गई थी मेल्स और म्यूज से, क्योंकि वो कभी गबरा को नॉक कर रहा था, कभी इसे नॉक कर रहा था। एंड सी स्टेप्ड साइड्स अवे along the branch, वो नीचे फिर साइड अवे नीचे उतर गई। That night the rain didn't let up, वहाँ उस रात को क्या हुआ, बारिश बिल्कुल बंद नहीं हुई। And the number of animals grew, सभी एनिमल्स वहाँ से जाने लगे, बढ़ने लगे। They huddled together,
सभी एक दूसरे के साथ बहुत ही नज़दीक होकर बैठ गए थे। थिंकिंग अबाउट द फ्लड मेमो एंड मिल्स हैड बीन टॉकिंग अबाउट, और सभी उसी फ्लड के बारे में सोच रहे थे जिस बारे में मेमो और मिल्स ने बात किया था। इट वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट थॉट, यह उनके लिए बहुत ही प्लेजेंट नहीं था, मतलब सभी डरे हुए थे उस फ्लड की वजह से सुनकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्काई ब्राइटेंड एंड द हैवी रेन चेंज्ड इनटू ड्रिजल एंड देन स्टॉप्ड। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग को हुआ चिल्ड्रेन, वो हैवी रेन चेंज हो गया, बहुत ही अच्छी सुबह की शुरुआत हुई, खुली शुरुआत, और ड्रिजल वहाँ पर लाइट रेनफॉल एंड देन स्टॉप्ड, बहुत ही लाइट हुआ और फिर रुक गया। द वाटर वॉज सून सोक्ड अप बाय थर्स्टी अर्थ, और वाटर जितना भी हुआ था उतनी बारिश सभी थर्स्टी अर्थ ने सोख लिया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही समर सीजन था चिल्ड्रेन, और जब बारिश हुई तो सब अर्थ इतना सूखा हुआ था कि वो सारा पानी उसके अंदर चला गया। द डस्टी लीव्स शोन बर्ड्स ओपन देयर पेटल्स एंड फ्लावर्स फिल्ड द एयर विथ देयर फ्रेग्रेंस। डस्टी लीव्स जो था अभी चमकने लगे अब, क्योंकि पानी के कारण सभी धुल चुका था। जो बर्ड्स थे, कलियां थी, वो खोलने लगी, वो पेटल्स उसके जो पेटल्स हैं उसके पंखुड़ी बाहर निकलने लगे, और फ्लावर्स के कारण सारा एयर जो है सुगंध से फैल गया। ग्रीन शूट्स पोक्ड विथ ईगर हेड आउट ऑफ द सॉइल, जो छोटे छोटे अंकुर थे जो नीचे ज़मीन से निकले थे वो ऊपर आने लगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग सेड दिना, दिना ने कहा कितनी अच्छी सुंदर शुरुआत है, मॉर्निंग है। द रेन हैज स्टॉप्ड, द सन इज शाइनिंग, वी आर ड्राई, लुक आवर फ्रेंड्स आर गोइंग होम एज वेल। देखो हम लोग कितने शाइनिंग कर रहे हैं और सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड टू डिग न्यू बुरोज फॉर देम सेड, वो लोग अपने लिए नया बुरो भी डिग करने लगे। जस्ट लुक एट द फ्रॉग्स दे लव द पुडल्स, सभी फ्रॉग्स को देखो, लोग भी कितने खुश हैं अपने पुडल्स में। पुडल्स में स्मॉल पॉन्ड, ओके। They see those silly monkeys. I didn't know monkeys enjoyed splash in pools, said Gabra. उसने कहा कि ये सिली मंकीज हैं, बेवकूफ़ हैं, जो कि हम लोगों को इतना डराए हैं। Look, the dust had hidden the mountain. Now the sky is so clear that we can actually see the snow-capped peaks. Okay, उसने क्या कहा कि देखो डस्ट had hidden the mountain, now the sky is so clear. स्काई अब इतना क्लियर हो चुका है कि यहाँ से स्नो कैप जो पीक्स है माउंटेन्स का, वो लोग यहाँ से फॉरेस्ट से देख रहे थे। सो क्लियर दैट कैन एक्चुअली सी द स्नो कैप्ड पीक, वो यहाँ से अब दिख रहा था हम लोगों को एक माउंटेन। सेड दिना, दिना ने कहा इट रियली लुक्स मैग्निफिसेंट, आई नो द वी कुड वॉक टू द माउंटेन। उसने कहा कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है, हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। आई हैव हर्ड दैट इट इज़ रियली ब्यूटीफुल देयर, उसने कहा कि मैंने सुन रखा है कि वो वहाँ बहुत ही खूबसूरत है। अ पैराडाइज ऑन अर्थ, जैसे अर्थ पर एक पैराडाइज हो, स्वर्ग हो। द अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज हैव लार्ज लीव्स, बहुत अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज हैं जिसके बहुत ही लार्ज लीव्स हैं। कलरफुल फ्लावर्स ग्रो एट फुट ऑफ माउंटेन, माउंटेन के फुट पर, मतलब माउंटेन के नीचे से बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स भी वहाँ पर हैं। द टेस्टी फ्रूट्स आर ह्यूज एंड द क्लियर बबलिंग स्पार्कलिंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वहाँ पर बहुत ही अच्छे स्पार्कलिंग स्ट्रीम्स, झरना है। वाटर आर कॉलिंग अस, वहाँ झरना मतलब बोल रहा है क्या दिना कि वहाँ जितने भी इतने अच्छे अच्छे टेस्टी फ्रूट्स हैं, ह्यूज बड़े बड़े फ्रूट्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, सभी हमें बुला रहे हैं। लेट्स गो गबरा, उसने गबरा को कहा चलो हम लोग चलते हैं वहाँ। प्लीज़ टेक अस विथ यू, शाउटेड मेमो एंड मिल्स टुगेदर, मेमो मिल्स ने भी कहा कि हमें भी प्लीज़ साथ में ले चलो। वी कैन स्विंग अराउंड ऑन द टॉल ट्रीज एंड ईट एज मच ऑफ डिलीशियस फ्रूट एज वी वांट, वहाँ हम लोग भी स्विंग करके बहुत टॉल ट्रीज पर जितना भी डिलीशियस फ्रूट्स है, जितना हम लोग चाहेंगे उतना खा सकते हैं। दिना डिडंट लुक टू प्लीज, दिना उन लोग को देख के पहले भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो खुश नहीं हुई। ऑल दैट स्विंगिंग अराउंड द मंकी हैड बीन ग्रोइंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म हैड मेड हर क्वाइट डिजी, स्टॉर्म के दौरान जितना भी वो लोग स्विंग कर रहा था उससे वो परेशान हो गई थी। मिल्स लुक्ड एट हर एंड सॉ द डिसअप्रूवल, वह उसके देखा और समझ गया कि वो
उसे मतलब कि मना कर रही है, डिसअप्रूवल, वो उसने सोचा कि वो मुझे नहीं ले जाएगी। ओह दिन्ना प्लीज़ डोंट बी डिसप्लीज, तो उसने कहा दिन्ना प्लीज़ सैड मत हो। वी हैव हर्ड दैट द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स नियर द माउंटेन आर फुल ऑफ फिश दैट ट्विंकल लाइक प्रीशियस रूबीज एंड एमराल्ड दैट कम फ्रॉम द माइंस। ओके, उसने क्या कहा कि तुम दुखी मत हो, मैंने सुना है कि वहाँ पर रिवर स्ट्रीम्स में जो माउंटेन के नज़दीक है वहाँ पर फिश जो है ट्विंकल, वहाँ पर फिश ऐसा दिखते हैं जैसे कि प्रीशियस रूबीज हो, मीन्स बहुत ही प्रीशियस स्टोन्स हो, एंड एमराल्ड्स हो दैट कम फ्रॉम द माइंस, जो कि माइंस से, माइंस मीन्स चिल्ड्रेन जहाँ से हम लोग को डायमंड्स वगैरह मिलता है। उसने कहा कि बहुत ही प्रीशियस दिखते हैं वहाँ के फिश स्ट्रीम में। What about a long tasty bananas that grow there, brother? said Memo. मेमो ने अपने मिल्स को भाई को कहा कि वहाँ पर बहुत ही लॉन्ग ग्रो बनानाज होते हैं। I have heard that such bananas can only be found near the mountain. बस नियर माउंटेन ही वैसे बनाना मिलते हैं। And the waterfall, Dina, you will love them. वाटरफॉल को दिना तुम बहुत पसंद करोगी। The water that rush down merrily shimmer and shine the sparkle like the stars in the night sky, said Mills. उसने क्या कहा कि बहुत ही शाइनी वो स्पार्कल्स दिखता है, चमकता रहता है नाइट स्काई में, वहाँ का वाटरफॉल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। That all sounds so good and perhaps there won't be any lions and leopards to stalk us. उसने क्या कहा कि ये सब तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ पर लायंस लेपर्ड न रहे जो कि हमारा हंटिंग कर ले। स्टॉक मीन्स हंट करना, स्टॉक मीन्स हंट कर लेना। शुड वी आस्क सम अदर एनिमल टू ज्वाइन अस? उसने क्या कहा, गबरा ने क्या कहा कि हम लोग को कुछ और एनिमल्स को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। देयर इज ऑलवेज सेफ्टी इन नंबर्स, जब हम लोग नंबर्स में रहेंगे मीन्स ज़्यादा रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। सेड गबरा, आई थिंक इट वुड बी बेटर टू गो इन अ स्मॉलर ग्रुप, अ लार्ज क्राउड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड बी स्ट्रेंज साइट इन द सेवेना। तब दिन्हा ने क्या कहा कि हमारा स्मॉल ग्रुप ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, लार्ज क्राउड होने से वो स्ट्रेंज दिखेगा और हम लोग सबके नज़र में आ जाएंगे। वी डोंट वांट द जैकल और लेपर्ड और लायन टू गेट इंटरेस्टेड इन अस, सेड दिन्हा। एंड सो इट हैपेंड दैट गबरा, the giraffe, Dinah the crane and Memo Mills the monkey set off on their long journey through the savanna to the great mountain. सभी स्टार्ट हो गए अपना लॉन्ग जर्नी के लिए, वहाँ माउंटेन जाने के लिए। After a while they stopped to eat. Gabra ate the leaves of baobab tree, while the other three searched for ant, beetles and berries to eat. गबरा जो है वो बाओबैब ट्रीज का लिव्स खाने लगा। थिक ट्रंक ट्री विथ लार्ज वाइट फ्लावर्स कॉल्ड मंकी ब्रेड। ओके, उस जो ट्री था उसको मंकी ब्रेड भी बोलते हैं, उस ट्रीज का वो लिव्स खाने लगा। और सभी दूसरे एनिमल जो उसके साथ है वो आंट्स बीटल खाने लगा। आंट्स बीटल आपका क्रेन खाने लगा और बेरीज मंकीज खाने लगा। गबरा टोल्ड देम टू लुक आउट फॉर लायंस। गबरा ने उसे कहा कि हम लोग को लायंस को भी देखते रहना है कि वो अगल बगल ना हो। सेड दिन्ना हेल्प आउट बाय फ्लाइंग अप टू द टॉप वन ऑफ द टॉलर ट्रीज फ्रॉम वेयर शी गॉट अ गुड व्यू फॉर ग्रास लैंड। और वो टॉप पर पेड़ पर चढ़ जाती थी जहाँ से वो देख के बताती थी कि हमारा अभी कैसा है, वहाँ पर लायंस है कि नहीं है। दे वॉकड ऑन स्टीडली, वो धीरे धीरे सभी को चलने लगे। स्टॉपिंग वेन ओनली फॉर मील, बस खाने के लिए रुकते थे और चलते थे। द स्काईज वेयर स्टार्टिंग टू टर्न ग्रे वंस मोर, फिर से स्काई जो था ग्रे होने लगा। द क्लाउड वेयर हैवी विथ देयर लोड ऑफ रेन, और क्लाउड भी बहुत भारी दिख रहा था बारिश के कारण। एंड ट्रैवलर्स वेयर अफ्रेड दैट सून इट वुड बिगिन टू पोर वंस मोर, ट्रैवलर जो थे वो लोग डर गए थे कि ये फिर से भारी बारिश होने वाली है। दे कुडंट सी अ शेडी ट्री अंडर विच दे कुड टेक शेल्टर, वहाँ पर उन्हें कोई भी शेडी ट्री नहीं दिख रहा था, बड़ा ट्री जहाँ वो शेल्टर ले सके। एंड टू रीच द माउंटेन दे वुड हैव टू वॉक फॉर येट अनदर डे, फिर से इसीलिए उन लोगों ने, उन्हें पेड़ मिला नहीं इसलिए उन लोगों ने
वेट नहीं किया और आगे बढ़ते चले गए। नेक्स्ट डे भी वो लोग चलते रह गए। द मंकी वेक्स रियली एक्साइटेड अबाउट रीचिंग द माउंटेन। वो लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, मंकीज खासकर, कि हम लोग माउंटेन पहुँचेंगे। दे हैड 100 क्वेश्चन दैट गबरा पेशेंसली आंसर। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एक्साइटमेंट थे वहाँ पहुँचने के लिए, और पेशेंसली गबरा ने उनका जवाब दिया। यस यस ही सेड, देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटरफॉल कास्केडिंग डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। फॉल्स भी है वहाँ पर, मीन्स वाटरफॉल्स जो कि स्लोप्स करते हैं माउंटेन्स पर। यू विल बी एबल टू स्प्लैश अबाउट इन पूल बिलो द फॉल्स। तुम लोग स्प्लैश वहाँ पर खेल सकते हो पूल में। देयर आर ऑल्सो ट्रीज कवर्ड विथ वाइन्स। वहाँ पर ट्रीज भी बहुत ही हैं, वहाँ कवर्ड होते हैं वाइन्स से। यू कैन एन्जॉय स्विंगिंग ऑन देम। वहाँ पर तुम झूला भी झूल सकते हो। द फ्रूट्स आर जूसियर एंड स्वीटर देन एनी you have eaten before and the mountain air is filled with the scent of thousands of blossoms। वहाँ पर इतने ज़्यादा फ्रूट्स स्वीट हैं, इतने अच्छे जूसर हैं कि तुमने कभी खाया नहीं होगा। और वहाँ पर बहुत ही अच्छा सेंट है, thousands of blossoms around the which butterflies flit। बटरफ्लाइज जो नेक्टर्स लेते हैं फूल में से, उनका वहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस फैला हुआ है। And what about the jackal and lions, the snakes and fierce leopard? Will we be safe from them? Gabra said Memo। मेमो ने कहा क्या वहाँ पर इतने सारे एनिमल्स, फियर्स एनिमल है, क्या उससे हम लोग सेफ हैं? Listen to the rumble of thunder, it is getting closer and closer। तभी वहाँ पर थंडर बहुत ही ज़्यादा होने लगा, बहुत ही नज़दीक से वो लोग सुनने लगे। Said Gabra, stop your endless chatter and search for a sheltered spot। उसने कहा कि अब तुम बोलना छोड़ो, अब कुछ शेल्टर्ड स्पॉट मतलब कि जगह ढूंढो जहाँ पर हम लोग शेल्टर ले सके। इट इज़ गोइंग टू रेन सून। बहुत ही जल्दी बारिश होने वाली है। ही हैड barely said the word when all the sudden of rain poured down। उन्होंने कुछ उसके बाद कुछ बोल ही भी नहीं पाए कि तुरंत ही बारिश बहुत ही ज़ोरों से शुरू हो गई या नीचे गिरने लगा, बारिश नीचे आने लगी। द monkeys clambered onto Gabra's back and Dinah sat between the two short horns on his head। ओके, तभी क्या हुआ, दोनों मंकी उसके ऊपर चढ़ गए, गबरा के ऊपर, वी कैन सी यहाँ बैठ गए, और क्रेन जो था दिन्हा वो उसके हॉर्न के बीच में बैठ गया। गबरा हेडेड टुवर्ड्स सम रॉक्स, और वो रॉक्स के तरफ जाने लगा। इट लुक टाइम एज द रेन बीट डाउन ऑन गबराज एंड हिज लोड। तभी उसके ऊपर बारिश गिरने लगी। The rain got into his eyes and that was when he felt his feet sinking into the soft slushy mud। उसके आंखों पर भी बारिश होने लगी और वो फील करने लगा कि स्लसी मड में उसका पैर धंस रहा है। Yes, the savannah was now becoming a sea of water। तुरंत ही savannah जो था sea of water बन गया, मतलब वहाँ बहुत ही ज़्यादा वाटर पानी आ गया। Was it going to flood again? क्या फिर से बाढ़ आने वाली थी? दिस वॉज द अनस्पोकन क्वेश्चन दैट वर्डिड देम। यही एक अनस्पोकन क्वेश्चन था जो कि उसने बहुत ही चिंतित कर दिया था, परेशान कर दिया। एज दे नियर द रॉक दे सॉ थ्रू द ब्लाइंडिंग रेन। वो लोग रॉक के ही नज़दीक थे जहाँ वहाँ पर इतनी जो हैवी बारिश हो रही थी। अ फ्यू एनिमल्स ऑन द रॉक वी कांट गो देयर सेड गबरा। उसने कहा कि कुछ एनिमल्स हैं ऊपर में लेकिन हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं। आई सी लायंस क्राउचिंग ऑन द रॉक। मैंने लायंस को देखा था, वहाँ पर वो लोग चल रहे थे। वी हैव टू गेट अ हायर स्पॉट। हम लोग को थोड़ा ऊंचा जगह जाना पड़ेगा सेड मिल्स, और वी शैल ऑल सून ड्राउन। नहीं तो हम लोग सभी डूब जाएंगे। ड्राउन मीन्स डूबना। द वाटर्स आर राइजिंग फास्ट। वाटर ऊपर बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से। It was then the Gabra spied some baobab trees। तभी गबरा ने क्या किया, baobab trees के पास and waded through the muddy water towards them। उस ट्रीज के पास वो जाने लगा। जंप मेमो जंप मिल्स। उसने क्या कहा, मेमो मिल्स को उस ट्रीज पर जंप करने के लिए कहा। द monkeys jumped and climbed up the highest branches। वो जंप करके सबसे हाईएस्ट ब्रांच पर चला गया। कम ऑन दिना फ्लाई अप द मंकीज एंड पर्च योर सेल्फ। ओके, उसने दिना को भी कहा कि तुम भी फ्लाई करो और अपना सिट, पर्च मीन सिट,
अपना वहाँ पर जाके बैठ जाओ उन लोगों के नज़दीक। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में वरी नहीं करो, टेंशन नहीं लो मेरे लिए। आई हैव लॉन्ग लेग्स एंड स्टैंड टॉल, और मैं यहाँ पर लॉन्ग लेग्स की हेल्प से यहाँ पर स्टैंड कर लूँगा। आई शैल बी सेफ फ्रॉम द फ्लड वाटर, और फ्लड वाटर से मैं अपने आप को सेव कर लूँगा। अ ड्रेडफुल नाइट ले अहेड ऑफ देम, बहुत ही ड्रेडफुल नाइट था उन लोगों के लिए। द मंकी एंड दिना ट्रेम्बल्ड विथ फियर ऑन द ट्री, वो बहुत ही डरे हुए थे, वो चूँकि ट्री पर थे तो भी डरे हुए थे। द रेन बीट डाउन ऑन देम, उनके ऊपर भी बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी। गबरा केप्ट लुकिंग एट द वाटर राइजिंग ऑल अराउंड हिम, गबरा भी देख रहा था कितना पानी ऊपर तक बढ़ सकता है। बाय मॉर्निंग गबरा कुड जस्ट अबाउट होल्ड हिज हेड अबव द वाटर एंड यस इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, जब सुबह हुई तो गबरा का सर ही ऊपर था, लेकिन बारिश चूँकि बंद हो चुकी थी। एज द सन रोज द नेक्स्ट डेंजर अवेटेड द वेट एंड टायर्ड क्रिएचर, जब सुबह हुआ सूरज उगा तो नेक्स्ट एक अगला खतरा उन लोगों के लिए वेट कर रहा था। 7 लायंस ले एस्लीप ऑन द रॉक, वो जो जिस रॉक पर जाने के लिए वो बोल रहा था, जहाँ पर उसने देखा था लायंस को, वहाँ पर 7 लायंस सोए हुए थे। गबरा न्यू दैट द मिनट द लायंस अवॉक, जब भी गबरा जानता था कि जब भी लायंस वहाँ उठेंगे, दे वुड बी हंग्री, वह भूखे होंगे क्योंकि इतनी बारिश में उन्हें खाना कभी मिला नहीं होगा। लुकिंग फॉर अ मील, वो खाना ढूंढ रहे होंगे। एंड ही ऑल्सो न्यू दैट ही एंड हिज फ्रेंड वुड बी लायंस मील, और वो उसका फ्रेंड बहुत ही अच्छा मील होगा उनके लिए, अच्छा भोजन होगा। इट वॉज नॉट अ प्लीजेंट थाट, यह प्लीजेंट थाट नहीं है, यह अच्छा थॉट नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट अवे फास्ट, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा, जाना होगा। सेट गबरा टू दिन्हा, सी फ्लू टू द मंकीज एंड नज्ड देम विथ हर बीक एंड विस्पर्ड, वो मंकी की तरफ चला गया। नज्ड देम मतलब उन्हें भी मूव किया, उन्हें भी वहाँ से हटाया। हर बीक एंड विस्पर्ड, और उसने विस्पर किया कुछ स्लोली, उसने उससे कहा हरी गेट बैक ऑन टू गबराज बैक, चलो गबरा के बैक पर। वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम द लाइन, हम लोग को लाइन से यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लाइन जहाँ लाइन है। बैक दे वेंट टू देयर पर्च ऑन गबराज बैक, सभी फिर से वहाँ पर बैठ गए गबराज के बैक पर। द ब्रेव जिराफ कैरिड हिज फ्रेंड थ्रू द स्प्रिंगलिंग वाटर, वहाँ वाटर के भंवर से वो वहाँ से निकलने लगे। कीपिंग अ वॉचफुल आई ऑन द लाइन्स को भी वो लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। दैट वेयर स्नोरिंग नॉइजली, वहाँ वो स्नोर कर रहे थे, मतलब कि सो रहे थे, वो आवाज़ जो करते हैं सोने के टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग। एज दे स्लेप्ट ऑन नॉट नोइंग दैट मेनी अ टेस्टी मॉर्सल वॉज सो क्लोजर ऑन टू देम, और इतने आराम से वो लोग सो रहे थे कि उन्हें पता नहीं चला कि बहुत ही टेस्टी मॉर्सल मीन्स